sir. Okay. Chalo, welcome to all of you in this signals class. So, just a moment. Okay, so all of you can see me also, no? You're right, sir. Yes, sir. Okay. So now you are in the signals class, and you got an opportunity to learn about signals. We will be having a couple of classes from now onwards for signals, and in the introduction part, I'll just let you know that what is the eligibility for the signals exam which you are going to face in MMD, right? So all of you have completed your 18 months C time, which is a requirement. Then you all will have to undergo the modular courses, ROC, ARPA, GMDSS, so and so, है ना? So you are all aware of those modular courses also. And along with this, you have to go for your signal exam also, which will be conducted in MMD. Now, earlier, it used to be like those who have qualified their written exams in MMD, they were only eligible for the signal exams. But recently, I came to know that there was a change, that as and when you get time, once you have completed all your courses and everything, although you have not cleared your written exams, but still you can go for your signals exam. So the latest you can find out from MMD, what is the latest. But earlier it was first you have to qualify your written exams, but I think now they have changed it. They have been more relaxed and allowed the students to appear. Once they have done everything, only writtens are pending, or they are doing their writtens as well as signal exams. ठीक है? Now, once you are eligible for your signal exams, then you will have to pay the requisite fees, which is to be paid by you all in Bharat Kosh portal, and then you have to appear for the exam. So this is all about your eligibility that is required for your exams. Now I'll tell you how the exam is conducted in MMD, which is very important for all of you to understand. Now exam is conducted only once in a month. So all those who are eligible to appear, they will pay the fees and appear in the exam in MMD. The duration, how much the fees is? I think fees is for 1,000 rupees. So you have to pay it online through Bharat Kosh, and you have to produce the receipt also over there when you go for your exams. And sir, what is the difference between this signal exam and the GMDSS course exam? Why it is separate? Oh, GMDSS is totally different. क्या डाउट है उसमें बताओ पहले तो। ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आ गया, मुझे भी डरा दिया। सिग्नल्स में है क्या सर? हाँ, सिग्नल्स में है क्या सर एक्चुअल में? ओके, सिग्नल्स में है क्या? सिग्नल्स में एक फ्लैशिंग लाइट होगी जिसको देख करके आपको डिकोड करके लिखना पड़ेगा। सो A to Z and 0 to 9 will be the codes. So like A को हम फोनेटिक्स में तो अल्फा बोलते हैं, लेकिन मोर्स कोड में हम उसे क्या बोलते हैं? कैन एनीबॉडी टेल? मोर्स कोड में हाँ, डिट्टा। दैट्स राइट। सो डिड्डा मोर्स कोड में बोलते हैं ना। तो अगर हम इसी चीज को लाइट के साथ फ्लैश करके दिखाएंगे
तो you have to see that light and identify what code that was, and you have to write it down in the sheet which is provided to you. ठीक है, तो GMDSS तो एक अलग ही कोर्स हो गया, और ये एक अलग वो है कोर्स जो आपको करना होगा, एंड यू हैव टू क्वालिफाई GMDSS ऑल्सो एंड सिग्नल्स एग्जाम ऑल्सो, है ना? ठीक है भाई मनदीप जी? हाँ जी सर। ओके, सो अभी आपने GMDSS भी नहीं किया होगा, है ना? नहीं सर, ये बार बार बंद हो रहा है। ये बस भगवान से प्रेयर करो कि जल्दी से ये पेंडेमिक खत्म हो। आप लोग सब के लिए मैं तो रोज यही प्रेयर करता हूँ कि बच्चे बेचारे डिले पे डिले होते जा रहे हैं, और ये भी अब फिर से बंद हो गया GMDSS। सर ये भी सुनने में आया सर आपके पास सीट ही फुल रहती है। अब सीट का तो वो है ना, बैकलॉग इतना ज्यादा हो रखा है कि सीट्स फुल हो रखी हैं। बट जो लोग कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं या जो भी है, तो उस केसेस में वेटिंग वालों को ले लिया जाता है। बट एनीवे इट इज नॉट दैट, जहाँ भी सीट मिलता है आप कर लिया करो जैसे भी, क्योंकि टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ, है ना? तो वैसे ही आप लोगों करके भूल भी गए सर। वो तो जब आप सेकंड मेट बनोगे तो रिफ्रेश हो जाएगा सब दोबारा, है ना? अभी ओरल्स के लिए जाओगे तो अगेन रिफ्रेश हो जाएगा। भूलने का प्रोसेस तो उसके बाद शुरू होता है है ना? तो अभी सिंस यू आर फोकसिंग ऑन योर सेकंड मेट्स, तो उस पर फोकस करो, और जब ओरल्स के लिए जाओगे तो ब्रश अप अगेन करना, तो फिर से सब याद आ जाएगा। इट्स नथिंग लाइक कि वो तो एक बार हार्ड डिस्क में चला गया ना GMDSS, तो अब वो चला गया। अब ना ओनली थिंग इज यू हैव टू रिफ्रेश इट एंड। सर ओरल से पहले ये सिग्नल्स का एग्जाम क्लियर होना जरूरी है? हाँ, अभी तक ऐसे ही था, अभी तक ऐसे ही था। अब धीरे धीरे आप प्रोसेस में आगे बढ़ोगे, तो जैसे जैसे चेंजेस आते जा रहे हैं, तो कीप इन टच विद MMD एंड दे विल लेट यू नो व्हाट इज द लेटेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर दैट। एनीवे, जब भी आपको करना है, करना तो है ही, तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस आपको बता देता हूँ कि देखो, सिंस ये जो एग्ज़ाम है ना, एक ही बार महीने में कंडक्ट होता है MMD में, वंस इन अ मंथ। नाउ ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम जो है वो 10 मिनट्स का होता है, ठीक है? अब यहाँ तो एक एक महीना भारी पड़ रहा है, और उसमें भी अगर 10 मिनट्स में यू लूज योर कंसंट्रेशन, तो आप फेल हो जाते हो, और जब फेल हो जाते हो तो एक महीना फिर खराब हो गया, और फिर अगले महीने आना पड़ेगा, है ना? तो उस चीज़ को हम प्लग इन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और सेकंड मेट्स की क्लास में मेरा एम्फोसिस यही होता है कि एग्जामिनेशन जो है वहाँ पे MMD में 10 मिनट्स का टाइम मिलता है आपको करने के लिए, डिकोड करने के लिए और उसको राइट डाउन करने के लिए। बट मेरा जो ध्यान होता है, और आप लोगों से भी मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कल से, आज से नहीं, कल से, कि यू कोऑपरेट विद मी, एंड मैं आपको उस लेवल पे ले जाके छोड़ूंगा कि आप MMD का एग्ज़ाम आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ा स्लो ट्रांसमिशन था। सो वी विल प्रैक्टिस फॉर 8.5 मिनट्स या 9 मिनट्स की प्रैक्टिस पे लाके आपको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? तो वहाँ फिर ये जो हमारी सिग्नल्स की क्लास होगी, अभी कल भी है शायद 11:30 पे है, और फिर 15:45 पे है, अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल आपके साथ। तो आज मैं अभी आपको कुछ कुछ टिप्स दूंगा, तो क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो सब आप रेडी करेंगे, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल प्रैक्टिस। इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग क्लास फॉर ऑल ऑफ यू, और टेक इट एज अ चैलेंज इन द सेंस कि 100 मार्क्स का पूरा एग्जाम होता है MMD में, तो हम सीधे MMD की ही तैयारी करेंगे, ठीक है? कि किस तरह से कोड्स आते हैं और किस तरह से ग्रुप्स आते हैं। सो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ अभी, लेट मी शेयर अ स्क्रीन विद यू। तो सर एग्जाम का पैटर्न कैसा है? सिर्फ रिटर्न है या कुछ ओरल में भी है? नहीं, इट्स ओनली रिटर्न। अभी स्क्रीन शेयर हो गया मेरा आपके पास? हाँ जी सर, आ गया। ओके, तो ये वाला स्क्रीन आप देखते जाओ, और लेट अस मेक इट एन इंटरैक्टिव क्लास। कुछ भी डाउट होता है ना, आप मेरे से बिल्कुल फ्रैंकली होके पूछो, कुछ भी पूछना है तो, ठीक है? मजा आएगा आपके साथ।
तो ये ब्लैंक शीट जो है ना आपको दिख रहा है कुछ इस तरह का, यही शीट आपको वहां पे एमएमडी एग्जामिनेशन हॉल में व्हेन यू एंटर द हॉल इस तरह का शीट आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो ये शीट में आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ इसको। हाँ, अभी क्लियर है, थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो नाम लिखना है आपको, यू हैव टू राइट डाउन योर नेम, और जो भी डेट होगी वो डाल दोगे यहाँ पे। ग्रेड विल बी और सेकंड मेट एफजी हो जाएगा। इंडोस नंबर प्लेस विल बी नोएडा, और रोटेशन नंबर छोड़ देंगे। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट बॉक्स जहाँ पे आपको डिकोड करके लिखना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू कैन हियर मी? सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। Yes. ओके, तो देखो एक स्टार्टिंग सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा लाइट के साथ, है ना। तो जब वो लाइट फ्लैश होगी तो एक स्टार्टिंग सिग्नल ट्रांसमिट होगा, और वो स्टार्टिंग सिग्नल क्या होगा वो मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा उसके साथ भी। तो जब स्टार्टिंग सिग्नल आएगा तो उससे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा या अल्फाबेट आएगा या डिजिट आएगा वो आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में लिखना है। ठीक है, यहाँ वाले दिख रहा है मेरा कर्सर, यहाँ लिखना है। ठीक है, सेकंड वाला कैरेक्टर सेकंड बॉक्स में, थर्ड वाला कैरेक्टर थर्ड बॉक्स में, फोर्थ वाला फोर्थ में, एंड लाइक दिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आपको पूरा ये फिलअप करना है। ठीक है, तो दीज आर 60 बॉक्सेस, 60 अल्फाबेट्स या नंबर्स जो हैं, डिजिट्स हैं, कुछ भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। मतलब एक बॉक्स में एक अल्फाबेट होगा या एक नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एमएमडी में। ठीक है, और क्लास में भी हम कल से ये प्रैक्टिस करेंगे। तो 60 कैरेक्टर्स जब खत्म हो जाएंगे, ये लास्ट वाला दिख रहा है, ये 60 कैरेक्टर यहाँ खत्म हो गए, उसके बाद एंडिंग सिग्नल आएगा। तो एंडिंग सिग्नल के बाद देन यू विल हैव टू जंप ओवर टू द ग्रुप्स। यहाँ पे ये ग्रुप्स डालने हैं आपको, और ये ग्रुप्स जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम ऑफ 4 लेटर्स। ठीक है, सो एनी 4 लेटर्स विल मेक अ ग्रुप। It can be 2 letters, it can be 3 letters, it can be 4 letters, but maximum will be 4 only. ठीक है, कोई कॉल साइन हो सकता है शिप का, SOS हो सकता है, किसी शिप का कॉल साइन भी हो सकता है ना, कोई भी ग्रुप हो सकता है जो आपको यहाँ पे डिकोड करके बॉक्सेस में लिखना है। नाउ ऊपर वाले जो बॉक्सेस हैं ये 60 बॉक्सेस हैं, तो हियर यू हैव टू, 1 बॉक्स कैरीज 1 मार्क। अगर आपने एक बॉक्स सही रिसीव किया है तो 1 नंबर मिल गए, 2 हुआ है तो 2 मिल जाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर और सर ये हमने कोई मिस किया है तो वो बॉक्स छोड़ना पड़ेगा ऊपर वाले में? हाँ, वो वाला बॉक्स आप छोड़ देंगे। ठीक है, शिफ्टिंग नहीं करेंगे। अगर आपने शिफ्टिंग कर दिया ना तो सारा गलत सर। फिर मान लो जैसे यहाँ पे देखो, जस्ट लिसन केयरफुली, यहाँ पे आया अल्फा तो आपने ए लिख दिया पहले बॉक्स में, फिर आया डेल्टा तो सेकंड वाले में डेल्टा लिख दिया, थर्ड वाले में आया चार्ली तो चार्ली के टाइम पे आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया, कहीं और सोचने चले गए तो मिस हो गया, तब तक फोर्थ कैरेक्टर आ गया। अब फोर्थ कैरेक्टर अगेन अल्फा था तो वो आपने सही तो रिसीव किया लेकिन इस वाले में लिख दिया। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग हो गई ना, और शिफ्टिंग का मतलब ये है कि ये पूरा फिर यहाँ से और यहाँ तक कट्टस लग जाएगा और यू विल गेट 0 मार्क्स ओवर ईयर। तो ये 60 में से अगर शिफ्टिंग कर दी आपने तो वो 0 कहला जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। सर ये इसकी कब तक मिल जाता है इसका रिजल्ट? या तो नेक्स्ट डे आ जाता है, अगर फ्राइडे को होता है तो मंडे को आ जाएगा, नहीं तो वीकडेज में होगा तो नेक्स्ट डे आ जाता है। पासिंग मार्क्स सर? अब पासिंग मार्क्स जो है 100 में से 70 हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला तो 60 मार्क्स का है, और नीचे देखो 8 बॉक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, 8 है ना, तो 5 मार्क्स का एक बॉक्स है या एक ग्रुप है। तो या तो ग्रुप बिल्कुल ठीक होगा या बिल्कुल गलत होगा, बीच का कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक है, अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल आपने रिसीव किया ARI, फर्स्ट वाला ग्रुप था ARI, तो आपने A की जगह BRI रिसीव कर लिया तो वो पूरा ग्रुप गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, Yes, sir.
तो ये 40 मार्क्स का नीचे वाला है और 60 मार्क्स का ऊपर वाला है। तो टोटल जो है 100 मार्क्स हो गया। तो यहाँ पे देखो ये 100 दिख रहा है और इसमें से आपको 70 स्कोर करना है। और 70 अगर आपने स्कोर कर लिया एंड अबव स्कोर कर लिया तो यू आर थ्रू। और अगर 69 स्कोर किया तो आपको फिर से आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब फिर से आने का मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा एग्जाम था यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 10 मिनट का एग्जाम था और उस 10 मिनट में आपने 69 स्कोर किए। दैट मीन्स अब दोबारा आना पड़ेगा, वो भी 1 महीने के बाद। सो यू लूज 1 कंप्लीट मंथ। ठीक है सर जो ग्रुप ए है ऊपर वाला और नीचे जो ग्रुप बी है, हाँ। दोनों में इंडिविजुअल पास होने का अलग अलग तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, टोटल 70 पे है अभी। ठीक है, लेकिन आप आई कैन अश्योर यू एंड विद योर कोऑपरेशन, मैं आपको अभी जब से मेरी आज से पहली क्लास है और अभी आने वाले दिनों में काफ़ी क्लासेस मिलेंगी आपको मेरे साथ, तो मैं आपको 99 या कुछ बच्चे 100 तक भी स्कोर करेंगे, लेकिन डेफिनेटली पूरा बैच जो है वो 90 के या 85 और 90 तक स्कोर करेगा मेरे साथ। आप प्रैक्टिस करेंगे कल से। ठीक है, तो मज़ा भी आएगा और टेक इट एज अ चैलेंज फॉर यू है। तो उसमें डे बाय डे, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो हम डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे और रोज 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 आप देखोगे कि आपके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी एग्जामिनेशन शीट है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगी। और अभी so now I'm back on your screen. अब जो शिफ्टिंग वाला बात है ना, अगर आपने शिफ्ट कर दिया ब्लॉक को या ग्रुप को, उसको किसी भी कैरेक्टर को, तो वो मिस्टेक नहीं मानी जाती है। इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्लंडर। वो मिस्टेक नहीं है। तो आपने पूरा ग्रुप सही किया और लास्ट में जाके शिफ्टिंग कर दी तो पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। तो अगर एक कैरेक्टर लूज करना है, मिस हो रहा है आपसे, तो जस्ट लेट इट गो, एक ही नंबर जाएगा आपका। ठीक है, और अगर आपने शिफ्टिंग करी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अवॉइड शिफ्टिंग इन द एग्जाम्स, है ना। और क्लास में भी शिफ्टिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करना। छूट जाए छूट जाए, एक नंबर जाएगा, जाने दो, कोई बात नहीं। हमें तो 70 चाहिए और हम टारगेट करेंगे 85-90 का। ठीक है, तो यहाँ तक और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो बोल सकते हैं मेरे से। एनीबडी हु वांट्स टू आस्क मी? सब ठीक है यहाँ तक? सर एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के बीच में टाइम कितना मिलता था? हाँ, वहाँ पे आ रहे हैं हम अभी। नाउ जो कैरेक्टर्स होंगे वो मोर्स की से ट्रांसमिशन होगा इसका। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आपको दिख रहा है ये फोटो पे मोर्स की? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? और देखो, जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो एक लाइट दिख रही है आपको? देखिए सर। दिख रही है ना? ठीक है, तो देखो, ये जो हम मोर्स कोड से हम ट्रांसमिशन करते हैं, तो ये जो आपको लाइट दिख रही है फ्लैश होती हुई, यही वाली लाइट आपको एमएमडी में भी दिखेगी और कल सुबह से आपको यहाँ पर भी दिखेगी। तो हम इस लाइट के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो अब ये देखो, मैं ए ट्रांसमिट कर रहा हूँ, अल्फा। अल्फा क्या होता है? डिड डा। तो ये देखो, वर यू एबल टू आइडेंटिफाई इट? यस सर। ठीक है, देखो, फिर से फोकस करो लाइट की तरफ। ठीक, और बी क्या होता है? किसी को पता है बी? डिड। हाँ, ठीक है, डा डिड। अब देखो बी आएगा, लाइट की तरफ देखना, दिख गया? तो अब फिर से देखना, अल्फा और ब्रेवो में दोनों ट्रांसमिट करूंगा और दोनों के बीच का गैप जो आप पूछ रहे थे वो देखना कितना होगा।
ठीक है। कंफ्यूजिंग है सर। हाँ, अभी लगेगा, लेकिन बाद में मनदीप आप ही मेरे को बोलोगे सर थोड़ा सा फास्ट करो, ठीक है, टेक माय वर्ड्स। ये हमको मोर्स कोड रटने के अलावा कोई रास्ता नहीं, इसको रटना ही पड़ेगा पूरा। हाँ, ये तो रटना पड़ेगा। अभी मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, आपको मैं कुछ याद करने के तरीके भी बता दूंगा। कुछ जो सिमिलर कोड्स हैं वो मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ, आपको बता देता हूँ, तो वो नोट डाउन कर लेना। अब ये देखो, डॉट और डैश जो होता है ना, इसी के कॉम्बिनेशन से ए से लेके जेड तक और 0 से लेके 9 तक और सारे पंक्चुएशंस जो हैं वो इन्हीं के वेरियस कॉम्बिनेशंस के साथ हम ट्रांसमिट कर देते हैं और आप लोग रिसीव करोगे। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर योर सेकंड मेट्स, वो ये है कि A to Z याद करना है आपको और 0 to 9 याद करना है, बस। कोई पंक्चुएशंस याद नहीं करने, कोई सिंबल्स याद नहीं करने, कुछ नहीं करना है आपको। तो A to Z के कॉम्बिनेशन और 0 to 9 का जो कॉम्बिनेशन है वो डॉट और डैश से बनेगा। तो डॉट ही रहेगी, है ना, डॉट इज अ यूनिट। और डैश जो होगा, जब हम ट्रांसमिट करते हैं ना, तो लेंथ ऑफ द डैश इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 डॉट्स। 1 2 3 डॉट्स के बराबर होता है, ठीक है। ये टेक्निकल बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो 1 डैश इज इक्वल टू 3 डॉट्स, ये लेंथ हो गई उसकी। नाउ द स्पेसिंग बिटवीन टू अल्फाबेट्स, ए और बी के बीच का जो स्पेस होगा, दैट इज इक्वल टू 1 डॉट। ये सब किताबी बातें हैं, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि अब नया अल्फाबेट आ गया, अब नया अल्फाबेट आ गया। बट जो जो टेक्निकल चीज है वो ये है कि बिटवीन टू अल्फाबेट्स द गैप इज 1 डॉट, एंड द स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स या टू ग्रुप्स, नीचे वाले मैंने आपको दिखाए थे ना शीट के अंदर 8 ग्रुप्स जो हैं, उन ग्रुप्स के बीच में 7 डॉट्स का गैप आएगा। एक ग्रुप खत्म हो गया तो 7 डॉट्स का गैप आएगा, ठीक है। गैप का मतलब ट्रांसमिशन नहीं होगा। आप काउंट करने मत बैठ जाना कि अभी 7 डॉट्स ट्रांसमिट करेंगे अब फिर दूसरा ग्रुप आएगा, ऐसा नहीं है। अंडरस्टूड? तो इसी के कॉम्बिनेशन से हम डॉट और डैशेस को बना लेते हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके पास पेन और नोटबुक है, आपके पास, सबके पास? यस सर। ओके, तो आप ना पेन और नोटबुक से आप पहले तो ये नोट डाउन कर लो। मैं जल्दी जल्दी आपको लिखवा देता हूँ, ABCD से लेके Z तक और 0 to 9 तक, 0 से लेके 9 तक क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं, और फिर उसमें आपको अलग से लिखवा दूंगा कि कौन कौन से रिजेंबल करते हैं। तो आज आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, एंड रिमेनिंग वंस यू कैन लर्न बाय प्रैक्टिस ओनली, ठीक है। इट इज नॉट दैट कि आप कर नहीं पाओगे, आराम से हो जाएगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, है ना। तो आप नोट डाउन करो जरा। सर आप कह रहे थे कि हमें पंचुएशंस नहीं है, तो मतलब आगे जाकर आएंगी पंचुएशंस मेट लेवल पे? नहीं 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 नहीं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो बस अभी दोबारा अभी सर एग्जाम अभी इसका? अभी बस सिग्नल पास करो और फिर हाथ जोड़ दो, ठीक है सर। ठीक है। हाँ, आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, बहुत टाइम खराब हो रखा है आप लोगों का, ठीक है। चलो, अभी आप नोट डाउन करो। ऑल ऑफ यू आर रेडी? यस सर। ओके, तो ए लिखो, ए इज इक्वल टू, उसके आगे लिखो डिड डा, 1 डॉट एंड 1 डैश। जल्दी जल्दी लिखेंगे, टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है आज। डिड डा, ठीक है। बी लिखेंगे डा डिट डिट डिट, 1 डैश एंड 3 डॉट्स। सी इज इक्वल टू डा डिट डा डिट, डैश डॉट डैश डॉट। डेल्टा डी को लिखेंगे डा डिट डिट, 1 डैश एंड 2 डॉट्स। ई को लिखेंगे 1 डॉट, ओनली सिंगल डॉट। एफ डिट डिट डा डिट, डिट डिट डा डिट, एफ हो गया, है ना। जी लिखेंगे डा डा डिट। एच डिट 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 डिट,
that is equal to 4 dots. ठीक है, 4 dots will make H. I 2 dots dit. J dit da 1 dot and 3 dashes. 1 dot 3 dashes. K da dit da dash dot dash. L dit da dit dit L हो गया है ना. M da 2 dashes. M is equal to da. N da dit 1 dash and 1 dot. ठीक है. O da. P पापा dit da dit. Quebec da dit da. Quebec is da dit da. Romeo R dit da dit. R हो गया है ना. फिर S is dit. T tango is single dash 1 dash. ठीक है. U uniform dit da. Tango is 1 dash. Uniform is dit da 2 dots and 1 dash. फिर आ गया Victor है ना. Victor is dit da. So 3 dots and 1 dash. Dit da. फिर क्या आएगा W whiskey means dit da 1 dot and 2 dashes. X-ray da dit da 1 dash 2 dots and again a dash. Da dit da X-ray. Yankee da dit da. ठीक है. da dit da. और Zulu का क्या होगा da dit. So 2 dashes and 2 dots. Got it? So this was from A to E का रिपीट करेंगे सर. E का पापा. E सर. E Echo या पापा. Echo is single dot, only 1 dot. Okay sir. Okay. Now write down. W हैं? W dit da. ठीक है. 1 dot and 2 dashes. ठीक है. ओके. अब आ जाएंगे 0 to 9 वाले नंबर्स के लिए. नोट डाउन कर लो. 1 लिखो पहले. 1 is equal to 1 dot and 4 dashes. Dit da 1 dot and 4 dashes. 2 में क्या होगा 2 dots and 3 dashes. Dit da. ठीक है. 3 में क्या होगा 3 dots and 2 dashes. Dit da. ये हो गया 3. 4 में क्या होगा 4 dots and 1 dash. ठीक है. और 5 में क्या होगा 5 dots. Dit. ठीक है. तो ये तो आ गया आपका 1 से लेके 5 तक. अब 6 पे आ जाओ. 6 में क्या होगा 1 dash and 4 dots. Da dit. ठीक है. 7 में da dit 2 dashes and 3 dots. 8 में 3 dashes and 2 dots. Da dit. ठीक है. 9 में 4 dashes and 1 dot.
डा 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 डिट, ठीक है। और 0 में 5 डैशेस, ठीक है। तो ये आपके A to Z और 0 to 9 हो गया। और अब नीचे ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन, हो गया, नोट डाउन कर लिया आपने? हाँ जी सर। यस सर। ओके ओके। अभी आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ कुछ जो रिजेंबल करते हैं कैरेक्टर्स, उसको याद करने के लिए आप देखो, नीचे वाली सबसे नीचे कहीं भी लिख सकते हो, अल्फा यूनिफॉर्म विक्टर 4, ये लिखो 4 कैरेक्टर्स, अल्फा यूनिफॉर्म विक्टर 4। अब देखो ऊपर वाले के साथ कंपेयर करो, अल्फा क्या है? आप माइक ऑन कर सकते हो, आप बता सकते हो। अल्फा इज डिडा, और यूनिफॉर्म क्या है? डेटा। हाँ, और विक्टर? डेटा। हाँ, और 4? डेटा। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो आप ये ध्यान कर सकते हो कि डॉट और डैश का कॉम्बिनेशन जो है, 1 डॉट एंड 1 डैश इज अल्फा, 2 डॉट्स एंड 1 डैश इज यूनिफॉर्म, एंड सो ऑन। अब दूसरी लाइन में देखो, ये 4 कैरेक्टर्स तो ऐसे रिजेंबल करेंगे थोड़ा थोड़ा, इससे याद रहेगा आपको। फिर दूसरी लाइन में लिख सकते हो एको इंडिया सिएरा होटल 5, एको इंडिया सिएरा होटल 5। अब एको देखो क्या है? डेट। हाँ, और इंडिया? हाँ, और सिएरा? डिड डिड डिड। होटल 4 डॉट्स हो गए, है ना। और 5 में क्या है? 5 डेट। 5 डॉट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एको इंडिया सिएरा होटल 5, ठीक है। तो ये हो गया। अब और नेक्स्ट नोट डाउन करो, अल्फा विस्की जूलियट 1, अल्फा विस्की जूलियट 1। तो अल्फा में क्या लिखोगे? डिडा, विस्की में डिड डा डा, जूलियट क्या है? डिड डा डा डा, और 1 में क्या है? 1 डॉट एंड 4 डैशेस। अल्फा विक्टर, अल्फा विस्की जूलियट 1, ठीक है। ओके, अभी ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट लाइन में लिखो टेंगो माइक ऑस्कर 0, टेंगो माइक ऑस्कर 0। ठीक है। अब टेंगो क्या है? व्हाट इज टेंगो? हाँ, और माइक? डा डा हाँ, और ऑस्कर? डा 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 और टेंगो को 0? 0 डा 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 डा। हाँ बिल्कुल ठीक। अब देखो अब ये कैसे पता चलेगा, और ये नोट डाउन कर लो, हाईलाइट कर लो कि ये 0 था या 5 था। अब नोट ऊपर जब आप एग्जाम में लिखोगे या क्लास में प्रैक्टिस करोगे, तो 0 को कैसे लिखना है और ओ को कैसे लिखना है, ऑस्कर को कैसे लिखना है ना। तो दोनों एक तरह से लिखे जाते हैं। तो जब भी आप नोट डाउन करोगे, लिखोगे, तो 0 विल बी रिटन एज थीटा या फाई, ठीक है। थीटा बना दो 0 का, मतलब बीच में से पेट काटना है उसका, ठीक है। जैसे म्यूट का साइन दिख रहा है आपको अपनी स्क्रीन पे, तो वही वाला 0 बनाना है आपको, थीटा बनाना है या फाई बनाना है 0 को।
और ऑस्कर विल रिमेन ऑस्कर ओनली, वो ऐसे ही रहेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर है? यस। ओके, अब बात आ जाती है हैंड राइटिंग की। तो हैंड राइटिंग आजकल इंक्लूडिंग माय सन, आप लोगों की भी मैं उम्मीद यही करता हूँ कि राइटिंग सबकी बहुत गंदी होगी मेरे बेटे की भी बहुत गंदी है। तो उसमें क्या होता है कि अब वो Z लिख रहा है कि 2 लिख रहा है उसको ही पता है। ठीक है, तो आप राइटिंग में जब भी ये लिखेंगे तो कैपिटल लेटर लिखेंगे, यूज करेंगे उस वाली शीट में। ठीक है, और मिस्टेक्स नहीं करना है कि ये 2 था कि Z था, पता नहीं, तो क्लियरली लिखना है आपको। 5 था कि S था, पता नहीं, है ना? ये सब गलतियां हो जाती हैं कि वहां पे 5 लिखना था कि S लिखना था, दोनों को एक तरह से लिख देते हो आप लोग। I था कि 1 था, पता नहीं, है ना? तो वो ये सारी चीजें जो गड़बड़ कर सकती हैं। आपने तो सही रिसीव किया था लेकिन एग्जामिनर ने उसे गलत रीड कर लिया एंड यू लूज 1 मार्क, है ना? और एक एक मार्क की वैल्यू आपको पता ही है कि 1 मंथ खराब कर देगी वो, है ना? तो इस छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका कल जो है ना A to Z और 0 to 9, ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना? तो कल से जब हम क्लास लेंगे तो मैं बिल्कुल स्लोली स्क्रैच से, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको ट्रांसमिट करूंगा और आप उसको आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा अल्फाबेट था या कौन सा कैरेक्टर था और कौन से बॉक्स में आपको लिखना है उसको। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मेरी पीछे जो लाइट है ये दिख रही है आपको, है ना? ये लाइट जल रही है, दिख रहा है आपको? ऑल ऑफ यू कैन सी? हाँ जी सर। ओके, हाँ, इसको ध्यान से देख लेना भाई। अगर कि स्टार्टिंग सिग्नल जो होता है ना, बिफोर फर्स्ट कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड, उससे पहले स्टार्टिंग सिग्नल आएगा, और स्टार्टिंग सिग्नल जो है वो चार्ली टेंगो होता है ना? तो चार्ली क्या लिखवाया है मैंने आपको? Dot it. हाँ, और टेंगो क्या होता है? Da. हाँ, तो ये दोनों मतलब विदाउट गैप आएंगे। ठीक है, और जो डैश आएगा वो बहुत लंबा वाला आएगा, है ना? ये देखो किस तरह से आपको दिखेगा वहां पे जब मैं स्टार्टिंग सिग्नल ट्रांसमिट करूंगा। ठीक है, लाइट को देखो, लाइट को, जस्ट फॉलो द लाइट। ये डैश लंबा वाला आएगा, अंडरस्टूड? फिर से देखो, डा डिड डा। अब ये स्टार्टिंग सिग्नल समझ आ गया आपको? अब इसके बाद जो भी कैरेक्टर आएगा, जो भी कैरेक्टर आएगा वो कैरेक्टर हम फर्स्ट वाले बॉक्स में लिखेंगे। नाउ लेट अस से वो कैरेक्टर, स्टार्टिंग सिग्नल एक बार फिर से रिपीट कर। हाँ हाँ हाँ, ये देखो देखो, अब ये लंबा डैश आ रहा है ना, लॉन्ग डैश, लॉन्ग फ्लैश है, इसका मतलब दिस वाज द स्टार्टिंग सिग्नल। और उसके बाद जो भी कैरेक्टर आएगा, नाउ यू हैव टू कीप योर कंप्लीट फोकस ऑन दिस लाइट। ठीक है, इस लाइट पे ज्यादा ध्यान रखना है और बॉक्सेस जहां आप लिख रहे हो वहां पे कम ध्यान देना, क्योंकि अगर एक भी डॉट मिस हो गया ना, देखो ये क्या था? डा डिड। हाँ, अब ये क्या होता है उसमें? देखो ऊपर क्या लिखवाया मैंने? बी। हाँ, और ये देखो ये क्या था? ये छूट गया सर ये बातों बातों में। हाँ, ओके, हाँ, ये देखो फिर से देखो, ये क्या था मनदीप? डेल्टा, है ना? तो एक, हाँ, डा डिड था, है ना? और पहले वाला क्या था? डा डिड। तो अगर एक डॉट भी आपने मिस कर दिया तो आपका कैरेक्टर गलत हो जाएगा। सर 2 कैरेक्टर में कितना टाइम मिलेगा? टाइम देखो, मैंने आपको बताया ना कि 2 अल्फाबेट्स के बीच में 1 डॉट का गैप होता है ना? तो ये तो टेक्निकल बात हो गई।
तो आप टेक्निकली चलोगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो सर हम नीचे लिखने वक्त देख रहे हैं तो सर मिस हो जाता तब तक हाँ हाँ पहला हाँ, उसको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कुछ और कह रहे थे, कौन कुछ बोल रहा था? किरत कुछ बोल। शीट मिलेगी या डायरेक्टली हमें देख के सीधा वर्ड लिखना पड़ेगा? अरे वहां पे वहां पे आपको सीधा ये वाली लाइट दिख रही है और यहाँ पे आपको कॉपी में या शीट पे लिखना पड़ेगा, और जैसे ही 10 मिनट्स हो जाएंगे एंडिंग सिग्नल आ जाएगा, आपकी कॉपी जब्त कर ली जाएगी। यू विल नॉट गेट इवन हाफ अ सेकेंड उसके बाद लिखने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट लाइट में से देख के शीट पे लिखना है आपको। अंडरस्टूड? अगर पता ही लगेगा कौन से बॉक्स में लिख रहे हैं हम, ऊपर नीचे हो जाएगा सब कुछ। नहीं, अब यही तो मैं कह रहा हूँ, इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो हम आज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज अभी मेरी क्लास जब खत्म हो जाएगी, आप जब घर जाओगे शाम को, तो A to Z और 0 to 9 बस याद कर लेना। इससे ज्यादा मेरे को आज के लिए आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये बस इतना काम करके आना। सर सिर्फ आज के लिए या पूरी सिग्नल की क्लास के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए? पूरी सिग्नल की क्लास के लिए नहीं चाहिए। उसके बाद तो तुम उसके बाद तो तुम अपने आप ही प्रैक्टिस करते जाओगे और देखना आगे बढ़ते चले जाओगे। आप जितने भी स्टूडेंट्स हो ना क्लास में, यू विल स्टार्ट कॉम्पीटिंग विद ईच अदर कि तेरे इतने आए, मेरे तुझसे ज्यादा ही आएंगे, देख ले, है ना। तो वी विल प्रैक्टिस लाइक दिस और मजा आएगा आपको क्लास करने में। ठीक है, तो इसको जब हम कल से करेंगे ना, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से और 0 से स्टार्ट करवाऊंगा। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके 90 नंबर लाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, और शिफ्टिंग करने से बचने की गारंटी आपकी होगी। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन हम लोगों का होना चाहिए कि वी हैव टू, जितने भी हमारे बच्चे हैं सेकंड मेट्स के, चाहे जूनियर ग्रुप हो या सीनियर ग्रुप हो, सबको पास होना है। मैं एक का भी 1 महीना खराब नहीं होने देना चाहता हूँ। ठीक है, हमको बस आगे निकलना है बहुत। तुम सबका टाइम वैसे ही खराब हो चुका है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर गलती हो जाती है, सपोज अगर हमें मतलब लिखना कुछ और था, लिख कुछ छोड़ दिया, हमें पता है क्या लिखना, तो कट करके वहाँ कुछ लिखना है या सीधा? हाँ, उसको स्ट्राइक कर दो और जो आपने सही वाला, आपके हिसाब से जो सही वाला है उसी बॉक्स में दोबारा लिख दो और छोटा सा इनिशियल बना दो वहां पे। ठीक है सर एंडिंग सिग्नल क्या होगा? हाँ, एंडिंग सिग्नल, अब फिर से लाइट की तरफ देखो। अल्फा रोमियो होता है। अल्फा क्या होता है? देखो ऊपर नोट मैंने आपको लिखवाया था अभी। अल्फा क्या होता है? हाँ, डिड्डा। और रोमियो क्या है? डिड्डा डिड, है ना। तो ये दोनों कंटिन्यूएशन में आएंगे, डिड्डा डिड्डा डिड। ये देखो लाइट देखो, अब जस्ट सी द लाइट। ठीक है, फिर से देखो। गॉट इट? तो अभी स्टार्टिंग सिग्नल फिर से देखना, एंडिंग सिग्नल फिर से देखना। सर ये जो हाँ स्टार्टिंग सिग्नल और आप जैसे एंडिंग सिग्नल हमें दे रहे हैं, हाँ एक्चुअल में अगर हम जब ग्रुप वाले कॉलम में आएंगे लिखने के लिए 3 या 4 कैरेक्टर वाला, उसमें से ऐसा तो नहीं होगा ना, उसमें तो गैप आएगा ना हर कैरेक्टर के बीच में एक डॉट का? हाँ हाँ हाँ। इसमें सर आप गैप नहीं दे रहे ना? नहीं, इसमें गैप नहीं दे रहे क्योंकि ये 2 अल्फाबेट्स का एक स्टार्टिंग सिग्नल बनाया गया है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। तो अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। लेकिन जो ग्रुप्स आएंगे या जो 60 कैरेक्टर्स हैं, उसमें डेफिनेटली आपको गैप मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द गैप। ठीक है, वो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, एंड सर गैप बिटवीन 2 ग्रुप्स? बिटवीन 2 ग्रुप्स विल बी इक्वल टू 7 डॉट्स। ठीक है सर। ठीक है, आराम से हो जाएगा। बस आज की जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो प्रॉमिस करो कि कल याद करके आओगे आप लोग। ठीक है, हाँ। तो बस मेरे को यही चाहिए, कल सब याद करके आएंगे तो हम देखना। मैं अभी जो भी आपके ग्रुप के एडमिन हैं, उनको एक शीट भी मैं उनको मेल करूंगा, तो वो वाली शीट आप को मिल जाएगी, है ना। तो वो आप फोटो स्टेट करा लेना या प्रिंट आउट, जैसे भी जो भी कन्वीनियंट हो आपके लिए वो कर लेना, और उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। वो प्रैक्टिस की शीट्स हैं वो। तो ताकि पेपर वेस्ट ना हो और एग्जामिनेशन का फील आपको रहे उसमें, तो वो वाली शीट में दे दूंगा कि बैक टू बैक आप उसको फोटो स्टेट करा लेना। तो वो आज मैं आपके जो भी ग्रुप एडमिन है उनको दे दूंगा। दे विल ही और शी विल मेल इट टू यू। अभी
यहाँ तक की तो बात हो गई खत्म स्टार्टिंग सिग्नल और एंडिंग सिग्नल की, ठीक है। अभी आप यहाँ पे 1 मिनट, ये मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। ये वाली शीट मैं आपको देने वाला हूँ। आ गई आपके सामने? ओपन नहीं हुई सर, अभी फोल्डर पे है। अच्छा, अभी आई? नहीं सर, ओपन नहीं हो रहा सर। ओपन नहीं हुई सर फाइल। चलो वो मैं भेज दूंगा आपको एनीवे, ठीक है। अभी दिख रहा है स्क्रीन पे? हेलो? यस सर, अभी दिख रहा है। अच्छा, चल रहा आ रही है। सर, स्लाइड्स आ रही सर। हाँ स्लाइड आ रही है ना। हाँ ये स्लाइड और देख लो जल्दी से, वो तो मेल पे आ जाएगी आपके पास, दैट इज नॉट अ बिग इशू। स्लाइड्स देख लो एक बार। ये थोड़ा सा बेसिक है इसका कि द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ सिग्नल इज टू प्रोवाइड ways and means of communication in situations related to essential safety of navigation and person, especially in case of लैंग्वेज डिफिकल्टीज। अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तब भी हम मोर्स कोड और ये यूज कर सकते हैं, और कोई आपका जो मेन इक्विपमेंट है अगर वो फेलियर हो जाएगा तब हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मेथड्स ऑफ सिग्नलिंग क्या है? फ्लैग से भी आप सिग्नलिंग कर सकते हो, मोर्स कोड साउंड से भी कर सकते हो, है ना। फ्लैशिंग लाइट सिग्नल्स यूजिंग मोर्स कोड, साउंड सिग्नलिंग, वॉइस ओवर लाउड हेलर, रेडियो टेलीग्राफी, रेडियो टेलीफोनी, एंड मोर्स सिग्नलिंग बाय फ्लैग और आर्म्स। सर ये आखिरी 4 नहीं पता। कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे उसको। ये रेडियो टेलीग्राफी जो होती है ना, ये अब आजकल तो शिप्स के ऊपर है नहीं, कुछ इंडियन नेवी शिप्स के जो है ना, उसमें साउंड मोर्स कोड होता है। तो डिडा 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 ट्रांसमिट करते रहते हैं, और दूसरे एंड पे जो रेडियो ऑफिसर होगा या जो भी रेडियो ऑपरेटर होगा वो उसे मैन्युअली डिकोड कर सकता है। ये रेडियो टेलीफोनी, ये फोनेटिक्स हो गई आपकी, अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, है ना। और ये फ्लैग्स हो गया बाय मोर सिग्नलिंग बाय हैंड सर फ्लैग्स। वो क्या और सर, वॉइस ओवर लाउड हेलर? ये पुराने जमाने का है, ये आजकल यूज नहीं होता, ये ओल्ड सिस्टम है ये, ठीक है। पहले वो होता था लाउड स्पीकर टाइप का, उस पे होता था ये। अच्छा, अब आ जाते हैं फ्लैग सिग्नलिंग पे, जिसमें जल्दी जल्दी देख लेंगे। मेन एसेंशियल पार्ट जो है दैट इज योर प्रैक्टिस, है ना। There are a set of signal flags consisting of 26 alphabet flags, 10 numerals, and 3 substitutes and answering pendants. ये तो सब आपको पता ही होगा, 26 फ्लैग्स हैं और न्यूमरल्स हैं, है ना। अब यहाँ आ जाओ, ये क्या था? फ्लैशिंग लाइट एंड साउंड सिग्नलिंग। The Morse signal representing letters and numerals are expressed by dots and dashes, which are signaled either singly or in combination. तो डॉट और डैश सिंगल भी ट्रांसमिट होते हैं, और कॉम्बिनेशन करके भी आप उनका अल्फाबेट और कैरेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो जो आप पूछ रहे थे, ये वो है, अ डॉट इज टेकन एज अ यूनिट and dash is equal to 3 dots, ठीक है। The space of time between 2 alphabets in a word is equivalent to 1 dot.
the space between two words or groups is equivalent to 7 dots. तो ये जो ऊपर वाले 60 कैरेक्टर्स आएंगे उनके बीच में जो गैप होगा 1 डॉट का होगा, और नीचे वाले जो ग्रुप्स आएंगे उसमें जो गैप होगा that will be equal to 7 dots. But don't go technically, practice will tell you कि gap आ रहा है आपको, you will be able to recognize it. ठीक है, अब ये आ जाता है a signal lamp also called an Aldis lamp named after Arthur Cyril Webb Aldis. उन्होंने इन्वेंट किया था. It is a visual signaling device for optical communication, typically using Morse code, है ना. तो ये ऑल्डिस लैम्प कैसा होता है ये आपने देखा भी होगा. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. और फिर इसका अगर स्नैपशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो. वैसे मैंने आपको लिखवा ही दिया है, क्लिक करना है तो कर सकते हो आप इफ यू वांट. प्रोसीजर सिग्नल भी होता है क्या चीज? सिग्नल फिर से रिपीट करो, आई डिडंट गेट यू. प्रोसीजर सिग्नल भी कुछ होता है क्या? नहीं, प्रोसीजर सिग्नल कुछ नहीं होता है. वो कंटेंट्स ऑफ द मैसेज होते हैं. वही जैसे किसको कॉल कर रहे हो और कौन कॉल कर रहा है एंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज. अभी आने वाले स्लाइड में दिख जाएगा वो आपको. ठीक है, तो ये A to Z और 0 to 9 जो मैंने अभी आपको लिखवाया था ये वही है. और उसके बाद ये आ गया. देखो जो आप पूछ रहे हो ना, the signal made by flashing light is divided into following parts. पहले कॉल हो जाएगा, उसमें कॉल में क्या होगा, आइडेंटिटी, हु इज ट्रांसमिटिंग. फिर दिस इज आ जाएगा, DE या दिस इज, एंड द आइडेंटिटी ऑफ द स्टेशन हु इज कॉलिंग. फिर टेक्स्ट हो जाएगा और एंडिंग सिग्नल विच इज आंसर्ड एज AR. एंडिंग सिग्नल इज AR, अल्फा रोमियो. ठीक है, तो ये तो पूरे लंबे लंबे मैसेजेस के लिए है. आपके लिए उसकी ज़रूरत नहीं होगी. आपका तो वो सिंगल शीट मिलेगी, उसमें से ही रिसीव करना है आपको. अब ये कुछ ग्रुप्स हैं, कोड्स हैं. अगर 2 बार अल्फा अल्फा आ रहा है तो उसका मतलब होता है ऑल आफ्टर. ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया आपको? एनीबडी? कब यूज करेंगे सर इसको? ये जैसे अभी देखो मैंने ये ट्रांसमिट किया, ये वाली लाइन मैंने ट्रांसमिट करी, यूज्ड आफ्टर रिपीट सिग्नल RPT, है ना. सपोज करो मैंने ये ट्रांसमिट किया ये पूरी लाइन, और आपने यहाँ तक रिसीव कर पाए यूज्ड आफ्टर तक, और ये इसके आगे ये वाला पोर्शन सब मिस हो गया आपसे, रिपीट सिग्नल RPT, है ना. तो अब आप अपने एंड से मेरे से पूछोगे कि सर ये इतना पोर्शन रिपीट कर दो फिर से. तो ऑल आफ्टर द वर्ड आफ्टर मैंने मिस कर दिया है, तो उसके आगे का सारा रिपीट करना है. अंडरस्टूड? ठीक है सर. ऑल बिफोर उसका उल्टा हो गया. ठीक, एंडिंग सिग्नल मैंने आपको बता ही दिया, अल्फा रोमियो है. वेटिंग पीरियड जो है या वेटिंग सिग्नल जो है अल्फा सिएरा है. ऑल बिफोर में सर कहाँ से होगा फिर रिपीट? जैसे ये वाला सेंटेंस हमने ट्रांसमिट किया है, यूज्ड आफ्टर रिपीट, ये मैंने पूरा ट्रांसमिट किया सपोज करो. ठीक है, हाँ जी सर. और आपने यहाँ तक तो रिसीव कर लिया, रिपीट तक, हाँ जी सर. है ना. नहीं, यहाँ तक रिसीव नहीं कर पाए, सिग्नल और RPT रिसीव किया आपने बस. ठीक है सर. तो फिर आप बोल सकते हो कि प्लीज रिपीट ऑल बिफोर सिग्नल. अंडरस्टूड? अच्छा, तो हमें सर वो वर्ड भी करना पड़ेगा, हमें दोबारा ट्रांसलेट जहाँ सिग्नल. से आपने रिसीव करना शुरू किया था वहां तक तो आपने कर ही लिया रिसीव, उससे पहले का मिस हो गया आपका. और अगर जैसे सर ऊपर वाले सेंटेंस में हमने रिसीव करा है यूज्ड आफ्टर रिपीट, तो हम सर करेंगे ऑल आफ्टर रिपीट. AA और उसके बाद रिपीट करेंगे सर.
Are we back? ठीक है, वापस आ गए हम. All of you can see the screen. Yes sir, yes. ओके ओके. और बस ये वाले जो कोड्स हैं, ऑल बिफोर एंडिंग सिग्नल, ये वाला हो गया. कुछ कोड्स यहाँ पर भी हैं ये. ठीक है. CS मीन्स कॉल साइन, DE मीन्स दिस इज, K मीन्स ओवर या इन्विटेशन टू ट्रांसमिट, NO इज नेगेटिव और नो, OK इज करेक्ट. ठीक है. ये सब कोड्स हैं जो यूज करते हो आप लोग भी मालूम ही होंगे ये तो. और ये वो हो गया. R स्टैंड्स फॉर रिसीव्ड, RPT स्टैंड्स फॉर रिपीट, WA स्टैंड्स फॉर वर्ड आफ्टर एंड WB मीन्स वर्ड बिफोर. अब ये डिस्ट्रेस के सिग्नल्स हैं. SOS तो आपको मालूम ही होगा, डिस्ट्रेस सिग्नल हो गया. XXX is urgency signal and TTT is safety signal. ठीक है. ये जो मोड्स कोड से हम ट्रांसमिट करेंगे तो इट विल बी SOS distress signal. XXX is for urgency and TTT is for safety signal. अब ये फ्लैग्स पे आ जाते हैं. तो फ्लैग में देखो, आर्म्स अगर रेज्ड हैं तो ये डॉट हो गया, और डैश के लिए यू हैव टू स्प्रेड आउट योर आर्म्स, तो ये डैश हो गया. ये सेपरेशन हो गया, और ये सेपरेशन बिटवीन टू लेटर्स हो गया. ठीक है. तो ये फ्लैग्स के थ्रू हो गया. और दिस इज, अगर राउंड राउंड घुमाएंगे इसको तो दैट मीन्स एरर सिग्नल हो गया, गलती हो गई, तो इरेज करना है उसको. ठीक है. तो एनीवे ये कुछ स्लाइड्स थी जो आपने देख ली हैं. और अब आपको क्या करना है. नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. कल हमारी क्लास कितने बजे है? फिर से 11:30 पे है क्लास. तो एट 11:30 कल हम फिर से मिलेंगे. आपको शीट मिल जाएगी वो वाली बाय मेल टुडे, आप ले लेना. और नहीं मिलता है तो आप अपने कॉपी में या रजिस्टर में वो 60 और 8 ड्रॉ कर लेना, उसमें भी कर सकते हैं. वैसे डेफिनेटली मेल हो जाएगी आज आपको. ठीक है. तो कल हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, और A to Z और 0 to 9 बस इतना याद कर लेना आप लोग. ठीक है. कोशिश करना कि सारे याद हो जाएंगे, और फिर डिकोड करने में उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए. क्योंकि लाइट देख रहे हो, एक बार लाइट देखो मेरी. तो ये क्या ट्रांसमिट किया था मैंने, फिर से देखो. व्हाट वाज दैट? नहीं, गलत बता रहे हो. फिर हाँ, डाडा डिड. ठीक है. हाँ, तो दीपेश ने सही कैच किया, डाडा डिड था वो. अब नाउ जब आप डाडा डिड रीड कर रहे हो लाइट को देख करके, इस लाइट को आपने देखा और उसमें आपने रीड किया डाडा डिड है. नाउ आपके ब्रेन को कुछ काम करना है. डाडा डिड का मतलब क्या हो गया कि ये गोल्फ बनता है. तो अब वो उसने उसको डिकोड किया, उसे जी बना दिया, और ब्रेन ने आपके हाथ को इंस्ट्रक्शन दिया कि अब कॉपी में जी लिखो. तो ये जो प्रोसेस है, इस पे हमें प्रैक्टिस करनी है कि पहले तो आप रिकॉग्नाइज द कैरेक्टर होगा, फिर कन्वर्ट द कैरेक्टर होगा, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द कैरेक्टर होगा. है ना. तो ये धीरे धीरे कल जब आप याद करके आओगे ना, आपको ऐसा लगेगा याद तो था यार, जूलियट था, डिड डा डा डा, है ना, लेकिन रिकॉल करने में टाइम लग रहा है आपको. तो उस गैप को हम प्लग इन करेंगे कल से. अंडरस्टूड? कीरत कुछ कह रहे हैं आप? ठीक है भाई, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Thank you, sir.
ओके ओके, तो आज की क्लास हम यहीं रोकेंगे, बट कल मजा जब ही आएगा जब आप लोग A to Z और 0 to 9 याद करके आएंगे, और कल प्रैक्टिस कल से स्टार्ट हो जाएगी। एंड टेक माय वर्ड्स कि हम जब तक ये क्लासेस जब भी हमको मिल रही हैं इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, और मैं आपको 85 90 एंड मे बी सम ऑफ यू कैन स्कोर इवन बियॉन्ड दैट, उसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। 10 मिनट्स का एग्जाम होता है, मैं आपको 8.5 और 9 मिनट की प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है? तो आपको मेरे साथ बस इतना कर लो आप, बाकी सब कल से अपना आप ही फ्लो में आ जाओगे आप लोग, ठीक है? एनी क्वेश्चंस इफ यू वांट टू आस्क मी? चलो देन वील कॉल इट, वी कैन गो फॉर लंच एंड you all can join in the next class, ठीक है? थैंक यू सर। ओके मनदीप, चलो टेक केयर। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, बाय बाय।